لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق شکریہ ڈاکٹر الله صاحب، شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمبل انٹلیکچوئلس یا حلقہ ناچیز دانشوران، ہم خیال دانشوران کا ایک حلقہ احباب ہے جس کے تحت اب تک کئی اہم کامیاب ویبینار منعقد کیے گئے ہیں اور ملک کے طول و عرض اور 7 سمندر پار بھی اس کی پذیرائی اور کافی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر زندگی پھیکی اور بے رنگ معلوم ہوتی ہے، اور ذہنی تفریح بھی ان میں سے ایک ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستانی سنیما کی 100 سالہ تاریخ میں اب تک دلیپ کمار جیسا فنکار دوسرا پیدا نہیں ہوا. موجودہ دور اور آنے والے ادوار کے ملینیم سٹارز اور مہانائکوں اور سپر سٹار کے لیے دلیپ کمار کی ذات گرامی بجائے خود اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. اردو کے مشہور افسانہ نگار کرشن چندر نے اپنی ایک ادبی محفل میں ادبا اور دانشوران کے روبرو جلوہ گر ہندوستان کی شان اداکاری دلیپ کمار کی فنی عظمت و انفرادیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی اداکار کو دیکھ کر گرگوری پیک یا مارلن برانڈو یاد آتے ہیں، لیکن دلیپ کمار کو دیکھ کر صرف دلیپ کمار ہی یاد آتا. خواتین و حضرات، محمد یوسف خان المعروف دلیپ کمار کی ولادت پشاور، پاکستان میں 11 دسمبر 1922 کو ہوئی. اسی کی مناسبت سے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار صاحب کا پر آج یہ ویبینار کا انعقاد ہو رہا ہے. آج کی اس ویبینار میں شہر میسور کے جانے مانے مشہور کمرشل آرٹسٹ جناب عباس شریف صاحب اپنی گفتگو میں بتائیں گے کہ وہ کیسے دلیپ کمار صاحب کے شہدائی بنے اور ملاقاتیں کی. پھر آپ موسیقی اور مصوری کی امتزاج سے ہمارے سامنے ٹریجڈی کنگ کی براہ راست تصویر پیش کریں گے اور دلیپ کمار صاحب کی یادگار نغموں، گانوں اور ڈائلاگز کی جھلک بھی پیش کریں گے. آخر میں اور جناب فاروق امین صاحب دلیپ کمار فن اور شخصیت اور میتھڈ ایکٹر، گانوں اور نغموں ڈائلاگز کی بھی جھلک پیش کریں گے. آخر میں ناظرین کی پسند پر ایک جوک باکس بھی ہوگا جہاں دلیپ کمار کی اداکاری وغیرہ، گانے، ڈائلاگز وغیرہ بھی آپ کی فرمائش پر پیش کیے جا سکیں گے. میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی فرمائش براہ کرم چیٹ باکس میں بھیجیں اور فون نمبر یہ ہے 9448010484 9448010484. تو آئیے سب سے پہلے شہر میسور کے مشہور کمرشل آرٹسٹ عباس شریف صاحب سے ان کے خیالات سنیں گے کہ کیسے محترم ناظرین، میں عباس شریف شہر میسور کا قدیم کمرشل آرٹسٹ ہوں اور دلیپ کمار صاحب کا زبردست شہدائی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی ہے اور باتیں کی ہیں. مجھے بچپن سے ہی فلم بینی اور موسیقی کا شوق ہے. سن 1948 آزادی کے 1 سال پہلے کی بات ہے، میں جب میسور میں دلیپ صاحب کی فلم میلہ ریلیز ہوئی تو میں میری خالہ اور خالو کے ساتھ میں نے فلم دیکھی ہے. پھر جب 1952 میں مشہور فلم ڈائریکٹر محبوب خان کی فلم ٹیکنیکل فلم آن ریلیز ہوئی تو یہ فلم بھی میں نے دیکھی ہے. دلیپ کمار صاحب کے ساتھ نادرہ، نمی، پریم ناتھ، مراد اور مخری کی اداکاری بڑی اچھی تھی. موسیقار اعظم نوشاد صاحب کی سحر انگیز موسیقی اور گانوں کی دھوم مچی تھی. دلیپ کمار صاحب کی بھرپور جوانی اور ان کی پیشانی پر زلف کا گرنا جو ایک خاص اسٹائل تھا مجھے بھا گیا اور میں نے بھی
उसे अपनाना शुरू कर दिया। मुझे बचपन से ही मुसव्विरी का शौक था और फिल्म आन देखने के बाद दिलीप कुमार साहब की तस्वीर बनाते रहना मेरा मशगला रहा। इसी के साथ उनको देखने और मुलाकात का शौक बढ़ता गया। सन 1961 में मैसूर ओलंपिया टाकीज में दिलीप कुमार साहब की मशहूर टेक्निकलर फिल्म गंगा जमुना रिलीज हुई और जब हमें पता चला कि दिलीप कुमार साहब यहाँ शो के दरमियान आने वाले हैं तो मैं मेरे दोस्तों के हमरा फर्स्ट शो में सामने की सीटों पर बैठे उनकी झलक देखने के लिए बेकरार थे कि एकाएक हाल में दिलीप कुमार साहब तशरीफ लाए और मुख्तसर तकरीब के हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और यकीन नहीं आ रहा था कि हम इन्हें हमारे सामने देख रहे हैं। अदाकारी के शहंशाह को, इनके बालों के स्टाइल को और इनके सूट को देखते रहे और हमारे लिए एक यादगार दिन था। इसी वक्त मैंने दिल में ये ठान ली कि मैं दिलीप कुमार साहब से जरूर मिलूंगा। मेरे दोस्त अहबाब से एक दीवाने का ख्वाब बताते हुए और नामुमकिन करार देते हुए, लेकिन मैंने इनसे शर्त लगाई कि जरूर मिलूंगा। सन 1979 यानी कि 1979 में जब बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुशायरा हुआ तो उस मौके को गनीमत जाना और दिलीप कुमार साहब को पेश करने के लिए शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद की जवानी की खद्दा और तस्वीर बनाई और हमारे हर दिल अजीज कायद और वजीर कर्नाटक जनाब अजीज सेठ साहब से मिलकर अपना इरादा जाहिर किया। आप बहुत खुश हुए और आपने जलसेगाह बेंगलुरु लश्कर छोटे मैदान में मुझे स्टेज पर बुलाकर मेरे ही हाथों से मेरी पेंटिंग दिलीप कुमार साहब को पेश की। दिलीप कुमार साहब ने मेरी पेंटिंग को सराहा। मैंने उसी वक्त आपका ऑटोग्राफ ले लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो भीड़ में कहीं खो गया। लेकिन मेरी दीवानगी आपसे फिर मिलने के लिए उनके होटल दूसरे दिन मुझे ले गई और दिलीप कुमार साहब ने मुझे पहचान कर कहा कि आपने कल ही ऑटोग्राफ लिया था। तो मैंने वाकई बयान किया। तो मैंने दिलीप कुमार साहब से ली गई तस्वीर दोस्तों को जब दिखाया तो वह तमाम ने बताया कि वाकई मैं एक सच्चा परिस्तार हूँ। मुलाजिमत के दौरान जब मैं दोहा खतर में था तो मालूम हुआ कि वहां दिलीप कुमार साहब खतर आए हुए हैं। तो मैंने वहां आपकी पोर्ट्रेट बनाई, आपसे मुलाकात की, लेकिन ये पेंटिंग मैंने शहर बेंगलुरु में मुनक्कद एक प्रोग्राम के बाद दिलीप कुमार साहब से मिलकर इन्हें पेश की। दिलीप कुमार साहब ने कहा कि आप वाकई बड़े अच्छे फनकार हो। ये अल्फाज मेरे लिए एक अवार्ड से भी ज्यादा अहमियत के हामिल थे। इस इज्जत अफजाई को मैं हमेशा याद रखूंगा और उनका परस्तार बनकर रहूंगा। फिल्म मुगल आजम जब कलर फिल्म बनकर मैसूर में रिलीज हुई तो मैं और मेरे साथियों ने मुगल आजम का एक यादगार बैनर मैसूर के संगन टाकीज में पेश किया और उन्होंने मैनेजर ने शोकेस में बहुत अच्छे तरीके से लगाया और देखा कि देखो दिलीप कुमार के जो फैन आए हैं सब आ जाओ इधर। शहर मैसूर में दिलीप कुमार साहब के नाम से बड़ा अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम किया जहां मुझे दिलीप कुमार साहब के एक जबरदस्त शहीदाई के तौर पर याद किया गया और मुझे एजाज दिया गया। इसके अलावा मैं मुफ्ती आजम नौशाद साहब, मोहम्मद रफी साहब और पंडित रविशंकर जी का भी बहुत मददार रहा हूँ। नौशाद साहब जब बेंगलुरु तशरीफ लाए
बेंगलुरु तशरीफ लाए हुए थे, तो मैंने आपसे मिलकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद की पेंटिंग एक ऑल इंडिया मुशायरे के दौरान पेश किया। दिलीप कुमार साहब की तबीयत की नासाजी का हाल सुनकर हम तमाम शहीदानियों को दिलीप कुमार साहब का बहुत दुख हुआ। लिहाजा नामवर शायर जनाब गौहर तरीके रवी साहब से एक दुआया नज़म लिखवाई जो अखबारात में शाया हुई है। हम तमाम शहीदानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो है कि इन्हें जल्द सेहत याबी अता करे, आमीन। दुआ कबूल हो या रब के उम्र खजर दराज। शुक्रिया। करिए। हाँ, जी शुक्रिया अब्बास भाई। आप बड़े फख्र से कह सकते हैं कि आपने दिलीप कुमार साहब को बहुत करीब से देखा है, उनसे बातें बिल्कुल की हैं, बिल्कुल बिल्कुल करीब से देखा और हूँ, जो बिल्कुल नाकाबिल करीब से देखा फरामोश है, हूँ, ये आपका सरमाया है। गुफ्तगू किया हूँ और जी, उन्होंने उनके मेहमान नवाजी में मुझे एक कप चाय भी मिली है। बड़ा अच्छा, खुशकिस्मत माशाल्लाह हूँ माशाल्लाह। कि चलिए चलिए, मैंने बहुत बचपन करीब से ही से देखा मैं है। उनका बंदा हूँ हाँ, सही और बात मैंने आपने भी बता दिया। हाँ, आज आपने भी बता उन्हीं भी का दिया। स्टाइल करने लगता हूँ, मगर जी, बिल्कुल सर पर तो बाल नहीं है, क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो उस चलिए जमाने चलिए में चलिए। मैंने तो हर स्कूल के वक्त जाते वक्त दिलीप साहब का स्टाइल करके जाता। लोग जी जी, मेरे दोस्त कहते कि आप क्या दिलीप कुमार हैं? नहीं नहीं भाई, माशाल्लाह मेरा स्टाइल माशाल्लाह। है नहीं, दिलीप साहब का। अब्बास साहब, वाकई आप वाकई ये हैं। अब आपकी फनकारी का मुजाहरा देखेंगे। जनाब अब्बास जी शरीफ जी, साहब जरूर जरूर अपने जरूर कैनवास जरूर, और ब्रश शुक्रिया, के साथ तैयार जरूर रहेंगे, जरूर, शुक्रिया, और जैसे ही जरूर एक शुक्रिया। फिल्मी गाना शुरू होगा, उसी बिल्कुल दम बिल्कुल अपने ब्रश से शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की तस्वीर बनाना शुरू कर देंगे। और जब तक के एक या दो गाने खत्म न हो, ये अपना काम जारी रखेंगे। और गाने के इख्तिताम पर जैसे ही अंतरा खत्म हुआ, ये आपका ब्रश पे रख देंगे। ये आपका अनोखा तरीका है। उम्मीद है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। जनाब अब्बास शरीफ साहब, अपने काम में लग जी जाएं। जी जी जी, अच्छा अच्छा, शुरू कर रहा हूँ। जी। कुछ आज की है। आज की क्या कुछ है बस भी, आज की रात है बस भी, कोसा का नाम आज की हाँ रात मेरे
Just like this one. काफी दिला वो लोग सीधे फार्म से आपके घर तक पहुंचा 36 hours के अंदर और एकदम फ्रेश wake up to freshness. Hi, I'm Swapna. Since I was a child, I've loved to paint. People always praise my paintings and say that my talent and I are both special. आसिफ कैमरा ऑन करिए. ओके. Other than that, I'm just like all of you. ठीक है. कैमरा ऑन करिए. आसिफ. ऐसे वीराने में तुम उठ के मर जाएंगे हम. ऐसे वीराने में तुम उठ के मर जाएंगे हम.
فلم دنیا کا شہنشاہ یوسف ثانی ہے تو، فلم دنیا کا شہنشاہ یوسف ثانی ہے تو، پردے سیمی پہ گویا نقش لافانی ہے تو، تجھ سے ہے قائم جہاں میں فلم دنیا کا وقار، ذکر ہوتا ہے تیری ہی خوبیوں کا بار بار، پرکشش ہے شخصیت تیری زمانے کے لیے، تو ہے ایک عنوان تازہ ہر فسانے کے لیے، اور کا سرمایہ ہے تو، قوم کی ہے آبرو، آج تک اللہ نے رکھا ہے تجھ کو سرخ رو، آن اور انداز سے قائم ہے شہرت آج تک، کم نہ ہو پائی کسی طرح عقیدت آج تک، اس قدر محبوب خان نے تیرا چرچا کر دیا، سر کو کہ آصف نے تیرے اور اونچا کر دیا، مغل اعظم میں اداکاری تھی اتنی لاجواب، نام روشن ہو گیا دنیا میں مثل آفتاب، جو بھی میدانی اداکاری میں آتا ہے یہاں، دل سے اپناتا ہے تیری ہر ادا کو بے گماں، سب تیری تخلیق کرنے پر یہاں مجبور ہیں، اصلیت کو پیش کر سکتے نہیں معذور ہیں، عاشق اردو ہے تو اور پیکر علم و ادب، گفتگو میں ہے سلیقہ اور لہجہ پر غضب، ابتدا ہی سے تیرے چرچے ہی ہندوستان میں، آج تک کوئی کمی آئی نہ تیری شان میں، تیرا انداز تکلم بھی ہے قدرت کی عطا، تیری فطرت میں ہے پوشیدہ ہر ایک پل حوصلہ، ترجمہ تھے تیری فطرت کے سبھی نغمہ نگار، سوز عطا کرتے تھے جذبوں کو تیرے سب موسیقار، سائرہ بانو شریکی زندگی جب سے بنی، مل گئی تنہائیوں کو تیری راحت روشنی، اب صحت یابی کی گوہر لوگ کرتے ہیں دعا، عمر میں تیری ہو برکت اور نگہباں ہو خدا۔ پیشکش عباس آرٹسٹ اور جملہ شہدائن شہر مسور۔ خواتین حضرات، سامعین بات تمکین، ناظرین بات تمکین، ابھی آپ نے فن کا مظاہرہ دیکھا اور خود ان کی زبانی دیکھا کہ کس طریقے سے دلیپ کمار کے شیدائی ان سے ملنے کی جد و جہد رہی، شروع بچپن سے ہی ان کی جو جستجو وہ آخری میں کام لائی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں فاروق امین صاحب سے کہ وہ اپنا پریزنٹیشن پیش کریں۔ آداب دوستو، آج ہم شہنشاہ جذبات دلیپ کمار عرف محمد یوسف خان کی بات کریں گے۔ محمد یوسف خان کا 11 دسمبر 1922 کو پشاور، شہر پشاور جو پاکستان میں ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کا نام دلیپ کمار 1944 میں رکھا گیا، جہاں سے انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کی ابتدا کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ دلیپ کمار نام کیسے ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس زمانے کی مشہور ہیروئن دیویکا رانی نے 3 نام تجویز کیے تھے، جن میں واسودیو، جہانگیر خان اور دلیپ کمار تھا۔ تو دلیپ کمار نے کہا آپ کوئی بھی نام رکھیے لیکن یوسف خان نہ رکھیے، کیونکہ ان کو اپنے والد محترم سے پٹائی کا ڈر تھا۔ دلیپ کمار ایک اداکار ہی نہیں، ایک بہت ہی سماج سیوک بھی رہے ہیں، جنہوں نے سماج میں فلاح و بہبودی کے اور دیش بھکتی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کا بہت حصہ لیا ہے۔ سال 2020 میں انہوں نے اپنا 98واں جنم دن منایا۔ دلیپ کمار ٹریجڈی کنگ اور دی فرسٹ خان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی میتھڈ ایکٹنگ کے لیے بہت ہی مشہور ہیں۔ میتھڈ ایکٹنگ اس کو کہتے ہیں جس میں اداکار اداکاری نہیں کرتا بلکہ وہ کیریکٹرز میں گھس جاتا ہے۔ جیسے اگر وہ ایک کسان کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ایک کسان بن جاتا ہے، اداکار دلیپ کمار یا یوسف خان نہیں رہتا۔ دلیپ کمار نے اپنے کیریئر میں کئی طرح کے رول کیے ہیں، مینیجر، گنڈا، ڈاکو، لٹیرا، پرنس اور ایک ناکام عاشق، زمیندار وغیرہ وغیرہ۔
انہوں نے ہر ایک کیریکٹر میں گھس کر کام کیا ہے اور اسی لیے دلیپ کمار کو ہندوستان کا میتھڈ ایکٹر کہتے ہیں۔ دلیپ کمار کئی انعامات اور ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ مشہور فلم میگزین فلم فیئر نے جب ایوارڈز کی فلم ایکٹنگ میں فلمی دنیا میں انعامات کا اجرا کیا تو سب سے پہلے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی دلیپ کمار نے اپنے نام کیا اور انہوں نے اب تک کئی ایوارڈز حاصل کرنا، سب سے زیادہ ایوارڈز لینے کا ریکارڈ بھی اپنے نام رکھا ہے۔ حکومت ہند نے دلیپ کمار کو ان کی فلمی دنیا میں جو کام انجام دیے اس کی سراہنا کرتے ہوئے عزت افزائی کی، جن میں ہندوستان کا سب سے دوسرا بڑا سویلین ایوارڈ پدم وبھوشن 2015 میں دیا گیا اور 2000 سے 2006 تک ان کو راجیہ سبھا کا ممبر بھی نامزد کیا گیا۔ 1994 میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ جو فلمی دنیا میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے، ہندوستانی فلمی دنیا میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے، اس سے بھی دلیپ کمار کو نوازا گیا۔ 1991 میں ان کو پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا تھا۔ 1969 اور 1982 میں ان کو شریف آف بامبے کا عہدہ عطا کیا گیا۔ 1998 میں حکومت پاکستان نے وہاں کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ یعنی نشان امتیاز یا آرڈر آف ایکسلنس سے نوازا گیا۔ الغرض دلیپ کمار نے اپنے نام کئی بلند سے بلند ترین مقامات حاصل کیے اور سب سے ہائیسٹ ایوارڈز حاصل کیے۔ ان کا فلمی کیریئر بھی حالانکہ چھوٹا رہا لیکن ان کی ادا کی گئی اداکاری بہت ہی یادگار رہ گئی۔ انہوں نے ابتدا 1944 میں جوار بھاٹا سے کی اور ان کی دوسری فلم تھی پرتیما جو دونوں فیل ہو گئی اور جن کی اداکاری کو بہت سے تنقید کی گئی تھی اور دونوں فلمیں فلاپ ہو گئی۔ تیسری فلم 1946 میں ملن ہوئی جو ایک سپر ہٹ رہی۔ اس کے بعد انہوں نے لگاتار کئی فلموں میں کام کیا اور اداکاری کے میدان میں اپنا نام کمایا، جس میں جگنو، شہید، ندیہ کے پار، میلہ، گھر کی عزت، انوکھا پیار، شبنم، انداز، جوگن، بابل، آرزو اور ترانہ رہی ہے۔ فلم ترانہ میں پہلی بار انہوں نے مدھو بالا کے ساتھ کام کیا۔ اس سے پہلے کامنی کوشل کے ساتھ بھی تقریباً 4-5 فلموں میں کام کیا تھا۔ 1951 سے 58 تک بھی کئی یادگار فلمیں رہیں اور 1952 میں فلم داغ کے لیے اداکاری میں بیسٹ فلم ایکٹر کے ایوارڈ سے انہیں فلم فیئر نے ایوارڈ دیا جو ایک ہٹ فلم رہی۔ آن فلم 1952 میں ریلیز ہوئی جو ایک کئی دنوں تک بلاک بسٹر تھی اور وہ ہندوستان کی پہلی ہندی کلر فلم رہی۔ اس کے بعد شکست، فٹ پاتھ، امر، اڑن کھٹولا، انسانیت، دیوداس، آزاد، نیا دور، مسافر، یہودی اور مدھومتی رہی، جو ان میں کئی فلمیں بہت کامیاب رہیں اور ان کو فلم داغ، دیوداس، آزاد، نیا دور کے لیے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا۔ 1959 سے 72 تک بھی کئی فلمیں ان کی کامیاب رہی، جس میں پیغام، مغل اعظم، کوہ نور، گنگا جمنا، لیڈر، پاری، دل دیا درد لیا، رام اور شیام، سنگھرش، سادھو اور شیطان، آدمی، سگینا مہتو،
गोपी, कोशिश और दास्तान रही। मुगल आजम फिल्म अपने दौर की सबसे अजीम तरीन और सबसे ज्यादा पैसा खर्च और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म रही, जिसमें उन्होंने प्रिंस सलीम का किरदार अदा किया। इनके मुकाबले में फिल्मी अदाकार जो नामवर अदाकार पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला और शोभना समर्थ थी। इसके बाद भी कोहिनूर में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। लीडर में भी बेस्ट एक्टर से नॉमिनेट हुए। कई फिल्में फ्लॉप हुई और कई फिल्में सक्सेसफुल रही। 1972 से 1998 तक भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 1998 की फिल्म खिला आखिरी फिल्म थी जो फ्लॉप हो गई। इसके बाद जब उन्होंने मेन एक्टर्स का किरदार छोड़ दिया तो कैरेक्टर एक्टर्स का भी अदाकारी में नाम कमाया। फिल्म क्रांति 1981 में बनी थी, जिसमें उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर का रोल अदा किया। कई नामवर सितारे जो आजकल के बहुत बड़े बड़े कलाकार जैसे अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने भी दिलीप कुमार के साथ काम किया और दिलीप कुमार ने अपनी अदाकारी के जौहर बहुत दिखाए। दिलीप कुमार ने अपनी कैरियर में का आगाज 1944 में जवाहर बाटा से तो किया था। वो हिंदुस्तान के एक ऐसे अजीम अदाकार हैं और उनकी रिटायरमेंट के बाद इतना अरसा होने के बावजूद भी इनका कोई सानी नहीं। मशहूर अदाकार और हिदायतकार राज कपूर के मुताबिक मुल्क में सिर्फ एक दिलीप कुमार है, दूसरा कोई इस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। 8 फिल्मों से आलमी शोहरत पाने वाले हिदायतकार सत्यजीत रे ने एक बार दिलीप कुमार को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें मुकम्मल मेथड एक्टर करार दिया, यानी कुदरती अदाकारी करने वाला एक ऐसा फनकार जो इतने किरदार को अपने अंदर समो लेता है और इस किरदार की तमाम कैफियत को साथ लेकर चलता है। ऐसे फनकार अपनी फिल्मी किरदार में कुछ यूं ढल जाते हैं कि दिन रात इसी रोल में बस जाते हैं। दिलीप कुमार जैसे फनकार अपनी हकीकी जिंदगी में हफ्तों और बाज़ औक़ात महीनों मखसूस फिल्मी रूप में जीते हैं। बीबीसी के एक इंटरव्यू में विनोद पांडे को बताया था कि अगर आप हिदायतकार हैं और ड्रामे के हैं कि बस किरदार हैं तो आपको इन किरदारों पर मेहनत करनी होती है, लेकिन एक अदाकार की हैसियत से मुझे सिर्फ अपने किरदार पर मेहनत करनी होती है। किरदारों को समझने और उन्हें निभाने की महारत के पीछे आपका वो जिंदगी भर का मुताला कारगर है। सायरबानो के मुताबिक दिलीप साहब घंटों मुताले में सर्फ करते हैं और उनकी फहरिस्त में शेक्सपियर, प्रेमचंद, गालिब, जोशमली आबादी, महेंद्र सिंह बेदी और कई नामवर अदबी शोरा और अदब के दुनिया के मशहूर लेखक और निर्देशक हैं। 2015 में लेट टॉम ऑल्टर साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक बार दिलीप कुमार से ये सवाल किया कि आपकी अदाकारी का राज क्या है। बिना एक मिनट देरी के दिलीप कुमार ने यह बता दिया, शेर और शायरी। इनका ये जवाब ये बताता है कि इनकी अदाकारी की ऊंचाई में उर्दू ज़बान का बहुत हाथ है, जिससे जनाब मरहूम
टॉम आल्टर साहब एकदम शजदर रह गए। वो उनके अंदाज में अपने ही अल्फाज में कहते हैं कि when you try to say something which is after all the job of every actor, what we say is only part of it. और आल्टर साहब ने बताया how we can say it carries much more importance. If you have a poetic style of conversation, it adds another dimension to your ability. दिलीप कुमार साहब ने खुद एतराफ किया है कि उनके खानदान फिल्मी दुनिया से लगाव नहीं रखता था और इनकी तालीम में दिलीप कुमार के एतराफ से ये साबित होता है कि उनकी खानदानी हालत इख्तिसादी तौर पर अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको तालीम छोड़नी पड़ी। लेकिन बाद में उन्होंने आर्ट और कल्चर और फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर जमाया तो बहुत ही कामयाब इंसान हो गए। कामयाब इंसान ही नहीं, कामयाब अदाकार भी हो गए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई डायरेक्टरों, अदाकारों और म्यूजिशियंस को ये साफ तौर पर बता दिया था कि उन्हें शेर व शायरी की किताबों में और अदब की दुनिया में खास लगाव रहा है, जो सिर्फ उर्दू ही नहीं, पंजाबी, अंग्रेजी और दीगर जबानों में वो रुझान रखते थे। सायरा बानो ने एक किताब के भी लिखा है कि जब वो पढ़ते थे तो एक बच्चे की तरह किताबों में खो जाते थे और जब तक वो किताब खत्म नहीं हो जाती वो चैन से नहीं बैठते थे। उन्होंने बीबीसी के एक नामानिगार महेंद्र कौल को 1970 में भी एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने उर्दू जबान का इतना अच्छा बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज का इस्तेमाल और अदायगी इतनी अच्छी तरह से की थी कि देखने और सुनने वाले दिलीप कुमार के दिलदा हो गए। जो लोग समझते थे कि वो सिर्फ अदाकारी ही कर सकते हैं, उन लोगों को भी ये मानना पड़ा कि दिलीप कुमार को उर्दू जबान में बहुत महारत है। जब एक नामानिगार ने उनसे पूछा कि उनमें एक जज्बात और ट्रैजिक कैरेक्टर्स कैसे आ गया, तो उन्होंने अपने अल्फाज में बताया, Tragedy itself lasts longer. The effect of a tragic story like that of Laila Majnu and Shiri Farhad remains after the story has ended. Happiness and joy pass away quickly. In my opinion, my performance as tragic actor have been memorable because of stories themselves have outlasted their time. Unquote. Another surprising moment comes when Kaul Sahib asks, दिलीप कुमार to sing a ghazal, तो दिलीप कुमार ने उनकी फरमाइश हिचकिचाते हुए पूरी की और गालिब की एक गजल सुनवाई। और जिस अंदाज में उन्होंने गजल सुनाई, लगता था कि एक बहुत बड़ा शायर गजल कह रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि दिलीप कुमार एक बहुत अच्छे कलाकार ही नहीं, एक बहुत अच्छे
गायक कलाकार भी थे। अदाकारी ही नहीं, वो गीत गाने में भी महारत हासिल थी। दिलीप कुमार इब्तिदा में एक बहुत बड़े फुटबॉलर थे, लेकिन उम्र के ढलते ढलते वो मुशायरों में और अदबी नशिस्तों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, टोरंटो, कनाडा, यूके और कई जगह वो अदबी नशिस्तों और मुशायरों में हिस्सा लेते थे। कुंवर महेंद्र सिंह जी के साथ एक महफिल में उन्होंने अपनी शेर व शायरी और अप्रिसिएशन और अपनी उर्दू स्पीच तकरीर जो कही, वो एक यादगार तकरीर है, जिसका लिंक हम इस वीडियो में देंगे। आप वो वीडियो में देख सकते हैं कि दिलीप कुमार का अंदाज़ बयां ही कुछ और था। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ को भी अपने खराज तहसीन पेश किया है। वो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी से कुछ इख्तिसाबात किए और बहुत ही अच्छे अंदाज से उनकी नज़्म को पढ़ा, जिससे हम सब महफूज और सुबुकदोश होते रहे और उनके ना चाहते हुए भी उनकी अदायगी को बहुत बहुत दिनों तक यानी अब तक याद करते हैं। अलगर्ज़, आज की सोशल मीडिया में हमारे अतराफ व अकनाफ जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत ही कम दर्जे की हो गई है। अभी हाल ही में कई वीडियोस ऐसे आने लगे हैं जिसमें गाली गलौज, बकवास और चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं होता। पेड मीडिया और दूसरे मीडिया में, टीवी मीडिया में भी ज़बान का दर्जा बहुत ही कम से कम तरीन हो गया है। आज के हम इस प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान का मेयार क्या है और हम इस मेयार को पहुंच करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आखिर में दिलीप कुमार ने अपने कॉल के इंटरव्यू में ये बताया, सिनेमा इज मेड ऑफ masses. It cannot be made in the vacuum of literature or political ideology or progress. As the quality of improves, our cinema will also improve. और उर्दू जबान, तो इसके ताल्लुक से दो चार बातें आपके सामने पेश करूंगा। वही आपके जो तराशी अखबार वगैरह के उनसे मैं उनके हवालों से पेश करूंगा। तो यह है कि दिलीप कुमार उर्दू जबान के जिंदा शाहकार। अहद मुगलिया ने हिंदुस्तान को उर्दू जबान और ताजमहल दिया, तो उर्दू ने हिंदुस्तानी सिनेमा को मुगल आजम और दिलीप कुमार दिए। दुनिया आज तक उन दोनों की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकी है और ना इन दोनों का सानी पेश कर सकी है। मुगल आजम अगर हिंदुस्तान की 1000 साल तारीख का निचोड़ और उसकी जिंदा तस्वीर है, तो दिलीप कुमार यूसुफ खां उर्दू जबान का शाहकार है और आज सारी दुनिया में उर्दू के सफीर की हैसियत से वो मकाम रखते हैं। और दूसरी ज़बानें हालांकि बहुत से खूबसूरत से बोल सकते हैं, लेकिन जहां भी जाएं वो तो उनकी जो फरमाइश होती है उर्दू बोलने की है। दिलीप कुमार जब उर्दू बोलते हैं तो इतनी खूबसूरत और शुस्ता और दुरुस्त उर्दू बोलते हैं, और अगर फहरिस्त बनाया जाए तो हिंदुस्तान में क्या पूरे बर्र सगीर बल्कि सारी दुनिया में दिलीप कुमार का मकाम सर फहरिस्त होगा। पिछले दिनों हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े मीडिया ग्रुप ने उर्दू चैनल का आगाज किया, तो इस चैनल के जो सरबराह थे उन्होंने उर्दू की क़ुव्वत गोई का इतराफ़ करते हुए कहा कि उर्दू जहां जहां बोली जाती है दूसरी ज़बानें बैठ जाती हैं। और हमारा ख्याल है कि जब दिलीप कुमार उर्दू बोलते हैं तो सब के सब खामोश हो जाते हैं।
दिलीप कुमार की जबान से उर्दू का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है। एक बार दिलीप कुमार तमिलनाडु में गए तो वहां पे अंग्रेजी बोलना चाह रहे थे, लेकिन लोगों के इसरार पे वहां का जो मशहूर अदाकार था कमल हासन के इसरार पर उन्होंने उर्दू सुनाई और जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और दिलीप कुमार का भी ये दावा है कि जब वो उर्दू बोलते हैं तो उसमें अंग्रेजी का कोई एक लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करते। आज उर्दू का बड़े से बड़ा जबानदान और शायर भी दावा नहीं कर सकता। दिलीप कुमार को ये शिकायत है कि आज हमारी नस्ल बेजबान है, उसके पास इजहार का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि आज उर्दू अपने हुस्न और क़ुव्वत गोयाई बढ़ाने का काम कर रही है। इससे हिंदी और दूसरी जबानों के लिए तवानाई कशीद की जा रही है। आज हमारी फिल्मी दुनिया में ले दे के जावेद अख्तर और गुलजार रह गए हैं, जो उर्दू में हिंदी और हिंदी में उर्दू लिख रहे हैं। आज हमारे दरमियान ना कोई साहिर है, ना शकील, ना हसरत। जहां तक कि सिर्फ कमाल अमरोही और दिलीप कुमार का ताल्लुक है, हम उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते, जिनके अनगिनत मकालमे महावीरे बन गए हैं, जिनकी जबान और जिनका जादू सिर्फ महसूस किया जाता है और बयान करना मुश्किल है। दिलीप कुमार की अदाकारी का शाहकार मुगल आजम के ताल्लुक से ये रिवायत मशहूर है कि वजाहत मिर्जा, कमल अमरोही, एहसान रजवी और अमान अली इसके हर मंजर और हर मकालमे को कितनी मेहनत से तराश खराश करके चमकाते और उसकी फिर की अदायगी पर कितनी मेहनत की जाती। ये चारों अलग अलग लिखते और हर किरदार को कियासत के सामने पेश करते और उनमें से इंतखाब किया जाता। और ये था जो ये मिसाल आज तक भी मशहूर है। और ये फारूक अरगली साहब की एक किताब है जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी उर्दू के ताल्लुक से भी और इनके ताल्लुक से भी बड़ा अच्छा बताया है। फारूक अरगली साहब उनकी किताब में लिखते हैं कि उसमें इफ्तिताइया में कि उनका इंटरव्यू जो जब उन्होंने लिया तो उसके बारे में तफसीलात बड़े अच्छा उनका जो इंटरव्यू है, तो उसके ताल्लुक से कुछ मैं इख्तिसाबात आपके पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि दरअसल दिलीप कुमार की गुफ्तगू इस कदर फसी व बलीग और शीरी होती है कि बस वो कहे और सुना करे कोई। मैंने उर्दू के अजीम तरीन अदीबों, दानिशोरों और शायरों की गुफ्तगू सुनी है, ये फारूक अरगली साहब कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तलाकत लिसानी, ऐसी दिलावेजी और ऐसी हलावत बहुत कम देखने में मिलती है। गुफ्तगू में सादी, हाफिज, मीर, नजीर, गालिब, इकबाल, जोश और फैज और फराग खूबसूरत से इस्तेमाल करते हैं। उनकी गुफ्तगू को सहरंगीज ये बना देता है। और वो उर्दू बोलते हैं तो पुरुषों को उर्दू मोहल्ला का गुमान होता है, और अंग्रेजी बोलते हैं तो खालिस एक्सफोर्डियन लहजे में। वैसे उनकी मादरी जबान पश्तो है, लेकिन घर पर अक्सर बड़ी रसीली पंजाबी बात करते हैं। तो उर्दू के ताल्लुक से जब उन्हें पूछा, फारूक अरगली ने पूछा उर्दू के ताल्लुक से, तो उनके क्या ख्याल थे आपके सामने पेश करूंगा। तो फारूक अरगली ने पूछा कि उर्दू जबान के साथ की जाने वाले नाइंसाफियों के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो दिलीप कुमार साहब वो रिकॉर्ड बाखदा किए हुए हैं, उनका जवाब बड़ा तफसील है। देखिए कि वही जो हर उर्दू वाले का है, यानी जब उनसे पूछा गया कि नाइंसाफियों के बारे में क्या ख्याल है, तो उनका जवाब था कि वही जो हर उर्दू वाले का है। हिंदुस्तान में पैदा होकर परवान चढ़ने वाली उर्दू जबान इस मुल्क की खूबसूरत तरीन जबान है। ये हमारे मुश्तरका कल्चर की शानदार अलामत है और हमारी कौमी एकजहती की अलमबरदार भी। बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज तंग नजर तबके उसे सिर्फ मुसलमानों की जबान बताएं, जबकि ये खतई गलत। दरअसल उर्दू जबान की परवरिश और पर्दाख्त में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का हिस्सा है। यह हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों का मुश्तरका तहजीबी सरमाया है, उसे जाया नहीं होना चाहिए। चाहे कितना बड़ा अलमिया है कि उर्दू को उसके घर में ही अजनबी बना दिया गया है, उर्दू वालों को इसकी हिफाजत में आगे आना चाहिए। इस सिलसिले में काफी काम भी हो रहा है। कई जगह उर्दू को दूसरी सरकारी जबान भी तस्लीम किया गया है। ये अच्छे आसार हैं, लेकिन इस मैदान में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं समझता हूँ कि उर्दू वालों को एक तंजीम पुरअमन तहरीक चलानी चाहिए, ताकि अरबाब इख्तिदार उर्दू के तरक्याती इक़दामात में इजलत करें। अगर कोई तहरीक ऐसी चलाई गई तो मेरा ताउन होगा। ये 1982 का जिक्र है।
क्योंकि मैं भी उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। दरअसल मुझे उर्दू वालों से भी शिकायत है, वो उर्दू के साथ नाइंसाफियों का रोना तो बहुत रोते हैं, लेकिन अमली कदम नहीं उठाते। ऐसे ही उर्दू की तरक्की की तहरीकात के अलमबरदार हैं जो उर्दू के लिए वाविला मचाते हैं, लेकिन खुद उनके बच्चे अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं। मैं नहीं कहता कि ये जबानें ना पढ़ी जाएं, फी जमाना इन जबानों के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि हर उर्दू दान अपने बच्चों को दूसरी जबानों के साथ उर्दू भी पढ़ाए। उर्दू के प्रोग्रामों में उर्दू दान अवाम को पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए, ताकि उनका इनेकाद करने वाले अदीबों, शायरों और मुफक्किरों की हिम्मत अफजाई और कम से कम माहौल तो बाकायम रहे। मैं तो इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर बहुत फ़आल रहने की कोशिश करता हूँ। उर्दू के मुशावरों में पाबंदी से शिरकत करता हूँ और ऐसे प्रोग्रामों की हिम्मत अफजाई करता हूँ, और जहाँ जो भी है जिस मकाम पर भी उर्दू का माल बनाए रखने में ताउन कर सकता है। ये हैरतनाक बात है कि जिस जबान को तेजी से मिटाने की कोशिश की जा रही है, उस जबान में सबसे ज्यादा अखबार और रिसाइल चाहे होते, लेकिन उनका मेयार बेहद पस्त है। उसकी वाहिद वजह यह है कि उर्दू वालों में अखबार और रिसाइल खरीद कर पढ़ने का रुझान बहुत कम है। ये सेहतमंद बात नहीं है। अगर लोग उर्दू के अखबार और रिसाइल खरीद कर पढ़े, ज्यादा खरीद कर करें, तो उससे जबान व अदब का फायदा होगा। मैं देखता हूँ कि गुजराती, मराठी और तमिल वगैरह चंद अजला तक महदूद जबानों के अखबार और रसाइल की इशात लाखों है। उस पर लोग उर्दू वालों को भी सोचना चाहिए, मुताले का ज़ौक़ पैदा करना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं उर्दू के मुस्तक़बिल से मायूस नहीं हूँ। एक जिंदा जावेद जबान है। हमने इसी जबान के जरिए आज़ादी का इनकलाब हासिल किया है। ये जबान तंग नजरी के हाथों फना नहीं होगी, ये कायम रहेगी। इसके कायम रहने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उर्दू को बुरा कहने वाले भी उर्दू ही बोलते हैं। बड़े बड़े हिंदी के अदीब फख्रिया तौर पर उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जबान, उर्दू हिंदुस्तान के मौजूदा तहजीब की अलामत बनकर उभर रही है और उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और उनके दौरान इंटरव्यू उन्होंने इकबाल और वगैरह के सामने बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि एक जो सियासी माहौल है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो जवाब उनका ये है कि इंसान जब चांद की सतह पर कदम रख चुका है, फलां को नाप रहा है, ऐसे में ये सियासतदान बहुत पस्त और बोलने लगते हैं। ये लोग इस दौर की अजमत के मजर नहीं, बकौल अल्लामा इकबाल मरहूम, फारसी का शेर उनके ज़बानी आता है, तू बतालाश चू वचन अखले तू दर कुशा व बंद। इकबाल मरहूम की नज़्म में एक सितारा इंसान से खिताब करता है कि तू तलाश कर रहा है छोटी छोटी चीजों को, चंद निहायत हकीर चीजों को, जैसे वजारत की कुर्सी, सदारत की कुर्सी, इख्तिदार, हुकूमत, आपस में लड़ाई झगड़े, और जो तुम इंतजार चल रहे हो कि फला पार्टी का फंक्शन नाकाम करूं, उसको यूं कर दूं, वो कर दूं, तो हकीम उम्मत इसमें फरमाते हैं कि अखले तो दर कुशा वो बंद, यानी तेरे फहम और इदराक के दरवाजे कभी खुल जाते हैं और कभी बंद हो जाते हैं। और मन के नशीमन बुलंद, मैं जिस मकाम से उससे जरा ऊंचा है, मैं अपने मकान को देखता हूँ। तो ये भी है। और उसके साथ साथ उनका जो ये है कि हिंदुस्तान ये भाई के मुगलिया सल्तनत के बारे में, और हमारा जो पुराना राग अलापते हैं, ये हमारे जो ये नस्ल परस्त में, तो बड़ा अच्छा कहा कि अगर मुगल इतने ही आमिर थे, फिरका परस्त थे, तो यहाँ सबको सब मुसलमान बना सकते थे, सबको कह सकते थे कि फारसी बोलो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वगैरह, और हिंदुस्तानी इसके ताल्लुक से भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की समाजी ज़बू हाली और इक़्तिसादी तनज़्ज़ुली के क्या वजूहात, क्या आप क्या समझते हैं? आप जानते हैं कि फिरका परस्ती, फसादात, तासुब और इस्तेहसाल की हवाएं चल रही है। आला जात वाले पसमंदा तबकात का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उन्हें कुचलना चाहते हैं। दौलतमंद सरमायादार गरीबों और मेहनत कशों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इन लानतों का सिद्देबाब के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो दिलीप कुमार साहब कहते हैं, आप इसके बाद आखिर में खत्म करूंगा कि आपका सवाल इंतहाई अहम है हिंदुस्तान मुसलमानों के ताल्लुक से, बेहद काबिल गौर व फिक्र। ऐसे सवालात का जवाब हम लाउबाली तरीके से दे दें तो गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं।
हिंदुस्तानी मुसलमानों का जहां तक सवाल है और मैं जहां तक समझता हूँ, फिरका परस्ती और तासुब का शिकार बनाए गए एक खास जहनियत के लोगों की तरफ से यह साजिश है। यह जहनियत आम हिंदुस्तानियों की नहीं है। मिसाल के तौर पर मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि आम हिंदू उनके दुश्मन हैं। ऐसी बात नहीं है। यह खास बालादस्त तबका है जो ऐसे रुझानात रखता है। बदकिस्मती से मुल्क में इस तबके की बालादस्ती सदियों से कायम रही है। वही ताकतें अपने खिलाफ ताकतों को उभरने और तरक्की करने नहीं देख सकती, इसलिए वो ऐसे हथकंडे अपनाती है जिसके नतीजे के तौर पर फसादात और मुनाफरत फैलती है। इम्तियाजी सलूक का रुझान भी इसी चंद फीसद महदूद लोगों के फैलाए हुए जहर की वजह से पड़ता है। वही जहनियत नीची जात वालों के साथ इख्तिसाल और कत्ले आम तक करवाती है। दरअसल नाम निहाद तबके को पसमानदा लोगों और मुसलमानों की तरफ से ज्यादा खतरा है। वो समझते हैं कि अगर लोग आगे बढ़ गए तो उनकी चौधराहट खतरे में पड़ सकती है। बस यही रद्दमल है जो उनको उकसाता है। मैंने पहले ही कहा था कि हिंदू एक शरीफ कौम है। आम हिंदू हरगिज किसी से झगड़ा नहीं करता। वो सुलह कुल के उसूल में यकीन रखते हैं। फिरका परस्ती तो मुट्ठी भर फसाद पसंद फैलाते हैं। आज अगर आप सुने कि भिंडी में या फला मकाम पर फसाद हो गया, आप वहां जाएं और हक़ाइक़ तलाश करें तो मालूम होगा कि वहां हिंदू मुसलमान कोई लड़ना नहीं चाहता और फसादत की आग कुछ गरज के बंदों ने भड़काई है। मुसलमान और दूसरे पसमानदा लोगों के साथ भेदभाव और उनका माशी इख्तिसादी इख्तिसाल होता है, तो वगैरह वगैरह। तो इसी में बड़ा अच्छी बात है, आखिरी में उन्होंने कहते हैं कि आज 1947 के बाद की वाली सूरत नहीं है। अब मुसलमान सर ऊंचा करके अपने वतन पर फख्र करने लगा है। अब उसने सोच लिया है कि उसे इसी वतन की खाक में पर मरना और जीना है। उसके लिए अब दुनिया में अपने वतन की सिवाय कोई जगह नहीं है। बस ये जज्बा उसे तरक्की की राहों पर आगे और आगे ले जा रहा है। मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के रोशन मुस्तकबिल की जानिब से पुरुमीद हूँ, बल्कि बिल्कुल उम्मीद भर हूँ। मुझे यकीन है कि सूरत हाल बदल कर रहेगी और अब इसमें ज्यादा देर भी नहीं है। जहां तक सरमायादाराना इस्तेसाल का मामला है, ये सदियों पुरानी लानत है, लेकिन माजी करीब और हाल में बेहद फर्क आया है। और जैसे बेदारी हुई आम होती जाएगी, इस्तेसाल कम से कम होता जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये बड़ा अच्छा पुरमगज़िन का एक इंटरव्यू भी है और उनके ताल्लुक से भी, अपने अकीदे के ताल्लुक से भी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कहते हैं कि मैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, साहबे कराम अलैहिस्सलाम, शुहदाए पाक का एहतराम करता हूँ और दस्त दुआ हूँ कि अल्लाह ताला मेरा खातिमा भी ईमान पर करें। चुनांचे मैं मुसलमान हूँ, इसलिए कुरानी तालीमात के तहत दुनिया के तमाम मज़ाहिब और उनके पेशवाओं की इज्जत भी करता हूँ। तो बहरहाल बड़े अच्छे ख्यालात हैं, बड़े, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो सायरा बानो से जब उन्हें पूछा गया कि दिलीप कुमार का मशगला क्या है, तो वो बताती हैं कि वो हर वक्त मुताले में गर्क रहते हैं और उनका जो ये है शेक्सपियर, गालिब, फ्रा वगैरह से उनका ये, तो बहरहाल उनकी जो बातें हैं और उनका जो मेथड एक्टिंग भी है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आया, बल्कि उनके गहरे मुताले से आया है। तो बहरहाल उनकी उर्दू ऐसी है, ऐसी शुस्ता है, ऐसी टकसाली जबान है, जैसा खुद ढल ढल के टकसाल से बाहर आ रही है। और नपे तुले अंदाज में इस तरीके से उर्दू कहते हैं कि मौका महल, और जैसा फारूक अरकली ने बताया कि बड़े से बड़ा शायर, बड़े से बड़ा अदीब, फिलासफर और मुफक्किर भी इस तरीके से बातें नहीं कर सकता। और जो भी वो बातें करेंगे सोच समझ कर करेंगे। यही मैसूर में मुझे हमारे एक दोस्त जनाब मोहम्मद समी अहमद साहब ने बताया था, जो फारूक में मेट्रोपोल में मैनेजर कैसे थे। तो उन्हें बताया कि जब शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार TR सागर आए थे तो उनसे पूछा, जब इंटरव्यू लेना चाहा, और हमारे एक मेरे बुजुर्ग दोस्त भी थे निसार अहमद शरीफ, मशहूर फुटबॉलर, तो इस तरीके से जब उन्होंने लेने उनसे इंटरव्यू पहुंचे तो पूछे कि कौन आ रहे हैं फुटबॉलर, तो बोले कल आओ। तो तब तक उन्होंने फुटबॉल की पूरी तारीख जान रखी थी और उनसे ऐसे ऐसे सवालात, ऐसी ऐसी बातें बताते कि खुद फुटबॉलर को नहीं मालूम।
تو بہرحال جو بھی باتیں کریں گے بڑی پہنچ تک اور ان کی جو ہے ڈیپ ان کی جو فکر ہے اور ان کا سوچ ہے بڑی تیز نگاہیں بھی اور سوچ کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال آج کی یہ کامیاب نشست رہی. میں اب فاروق امین صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ پروگرام کے تعلق سے اگر کوئی آئے ہیں چیٹس میں تو جو باکس بھی کھولیں تو دیکھیں گے ان کی جو ہے کیا کیا فرمائشیں ہیں, دیکھیں ان پر عمل کریں گے ہمارے جو شائقین ہیں. شکریہ شفیع احمد صاحب, بہترین تقریر کی آپ نے, اور اردو اور دلیپ کمار صاحب سے جو تعلقات اور خیالات تھے بہت تمکین آج کی جو اس یہاں کی نشست رہی بڑی کامیاب رہی. ہمارے فاروق امین صاحب کا یہ گلہ بھی رہا کہ ہمارے دیوداس کے ڈائلاگس نہیں اس میں شامل ہو سکے. بہرحال ان کے نظر یہ تھوڑے سے 2-3 ڈائلاگس پیش کر کے, کیونکہ اردو کی تعلق سے ہمارے اردو کے تعلق سے دلیپ کمار صاحب کے جو منہ سے نکلے ہوئے ادائیگی کس طریقے سے ہے, میں 2-4 ڈائلاگس پیش کر کے پھر شکریہ ادا کر دوں گا. تو دیوداس کا ایک جو مشہور ڈائلاگ ہے دل مکار سے کہ ہوش سے کہہ دو کبھی ہوش نہ آئے, ایک ڈائلاگ ہے. دوسرا, اللہ حافظ. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے یہاں آنے سے میں سب کچھ کھو دوں گا, اس طرح لٹ جاؤں گا, تو میں یہاں کبھی نہیں آتا. اور تیسرا ڈائلاگ ہے, کون کم وقت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے, میں تو پیتا ہوں کہ بس سانس لے سکوں. اور مغل اعظم کا ڈائلاگ ہے کہ محبت جو ڈرتی ہو وہ محبت نہیں عیاشی ہے. اور دوسرا, وہ آپ کا دودھ خون بن کر میری رگوں میں جی رہا ہے, کہیے تو آپ سب کے وہ سب آپ کے قدموں میں بہا دوں, مگر مجھ سے اس کا سود وصول نہ کریں. تیسرا اور ڈائلاگ ہے, دنیا میں دل والوں کا ساتھ دینا, دولت والوں کا نہیں. اور دوسرا, میں تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت کا اقرار دیکھنا چاہتا ہوں. پھر اور ایک دوسرا ہے کہ میرا دل بھی آپ کا کوئی ہندوستان نہیں جس پر آپ حکومت کریں. اور تقدیریں بدل جاتی ہیں, زمانہ بدل جاتا ہے, ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے, شہنشاہ بدل جاتے ہیں, مگر بدلتی ہوئی دنیا میں محبت جس انسان کا دامن تھام لیتی ہے وہ انسان نہیں بدلتا. اور آخر میں ایک ڈائلاگ ہے کہ بھگوان نے کتنی اچھی طرح تم کو سجا کر اس دنیا میں بھیجا ہے, آنکھیں جیسی جھیل میں کھلے ہوئے کمل, دیکھتی ہو تو آکاش میں اندر دھنوش کھل اٹھتے ہیں, شرماتی ہو تو کلیوں کا سر جھک جاتا ہے. تو بہرحال خواتین حضرات, آپ کی شمولیت ہمارے لیے باعث خوشی اور ہماری جو عہد و پیمان یعنی جو ہمارا اقرار اور تجدید اقرار ہوتا ہے کہ ہمیں اور کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ کہوں کہ اس قدر آپ کی آمد کا یقین تھا دل کو, اس قدر آپ کی آمد کا یقین تھا دل کو, ہونٹ بے چین تھے اظہار تشکر کے لیے. خواتین حضرات, آپ کی شمولیت اور آپ کی دلچسپی برقرار رہے اردو کے تعلق سے. حالانکہ یہ جو ہمارا آج کا موضوع تھا یہ ہمارے سے ہٹ کر تھا, کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہ پہنچے کہ فلمی دنیا کی اس میں کیا کام ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جناب دلیپ کمار صاحب کی جو اردو ہے اور ان کی جو فکریں ہیں, اور خصوصاً جیسا کہ میں بتایا کہ یہاں پہ جو ان کے انٹرویوز ہیں آپ پڑھیں, ان کا جو ذوق ہے, ان کا شوق ہے, اور ان کی جو فکریں ہیں, اور ان کی جو امت کے تعلق سے جو وہ سوچتے ہیں, اور عقیدے کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی. بڑی لمبا انٹرویو ہے. تو بہرحال ایک ان کو دلیپ کمار صاحب کا, حالانکہ جیسا ہمارے فاروق امین صاحب نے بتایا کہ ڈائلاگس بھی سنتے رہتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں, گانے بھی چلتے ہیں, لیکن ان کی زندگی کا جو وہ پہلو, وہ اس پر سے جو پردہ اٹھانا تھا, دیکھنا تھا, اور ان کی جھلک دیکھنا تھا, تو اس میں سب آپ کو مل گئے. اور یقین جانیے جب فاروق صاحب نے بتایا کہ
एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो इत्तेफाकन अब्बास शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तो वो जिस तरीके से मेथड एक्टिंग होती ना, उसमें खो गए, उसमें डूब गए, और हमारे सामने एक बेहतरीन उसका शाहकार भी पेश किया। तो आप शहरानी मैसूर को भी एक मालूम हो कि मिलाद बाग के जो सदर दरवाज़ा है, वहाँ पे हमारे अब्बास शरीफ साहब ने अपने सरफ खास से एक खत आदम लंबी तस्वीर दिलीप कुमार की, उस पर जनाब गौहर तरीकुरी साहब की जो नज़्म लिखी हुई है वहाँ पे लिखी, और आज के सालार में भी वो छपी हुई है। मैं हमारे हम्बल इंटेलेक्चुअल्स की जानिब से खुसूसन अब्बास शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनतें की। हमारे जो फरूख अमीन साहब मुझे हर वक्त कहते हैं, भाई वो जो है ना, उनकी उम्र का भी ख्याल करो, ज्यादा उन पर बार मत डालो। लेकिन मैं क्या करूं कि जनाब अब्बास शरीफ साहब खुद आगे बढ़ते हैं, और अपनी जो है उम्र से ज्यादा भी उनकी जो हिम्मत है और उनका काम करने का जो लगन है, आपने देखा कि सच्ची तरीके से वो ब्रश चला रहे थे। और किस तरीके से उन्होंने भी दिलीप कुमार साहब के साथ की मुलाकात का जिक्र भी किया। मैं खुसूसन तमाम की जानिब से जनाब अब्बास शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम सब दुआ गो हैं कि अब्बास शरीफ साहब की उम्र दराज हो, उनका जो जज्बा खाम रहे, और अल्लाह करे कि उनकी जो तमन्नाएं और दुआएं हैं दिलीप कुमार साहब के ताल्लुक से वो पूरी हों। अल्लाह उनको सेहत भी तंदुरुस्ती अता करे। और साथ साथ मेरे तमाम साथियों का जिन्होंने जो कुछ भी हमारा साथ दिया है, मैं फरूख अमीन साहब को मैं हर वक्त कहता हूँ कि मोटिवेटर और ये टेल ट्विस्टर होते हैं। हर वक्त जो है ना, तब जो भी चीज़ नई वो पेश करना चाहते हैं, और उसे ज़रूर से करना चाहते हैं, उनका जो इरादा होता है पक्का होता है, और उसे पाए तकमील को पहुंचाने में। हालांकि आज की हमारी जो प्रोग्राम में थोड़ी सी कुछ कमोबेशी भी होगी, लेकिन जज्बा तो सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब का मैं भी मशकूर हूँ खुसूसन, क्योंकि वो हालांकि अपने इम्तिहानात के वो सरबराह भी हैं, तो तमाम उनकी जो है ना जिम्मेदारी होती है RUHS की तरफ से, फिर भी इतने भले मानुस हमारे जो हैं अपने हमारे लिए वक्त निकालते हैं। और जब भी जाता हूँ पूछता हूँ मैं, हालांकि फरूख अमीन साहब उनको पूछने से पहले बोलते हैं नहीं भाई उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, लेकिन मैं जब उनको पूछता हूँ, दरियाफ्त करता हूँ कि थोड़ी सी आपको ये बोला, तो नहीं बोलिए अंकल, इतनी शाइस्तगीर से, इतनी से तहजीब से आप पेश आते हैं। अल्लाह आपका जज्बा सलामत रखे, और आपकी उम्र दराज हो, और हमारे जो है आपके हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो काम हैं, इसमें और ज्यादा। और मैं तमाम हमारे मेंबरान का और जो कुछ भी बाहर से आए हुए हैं उनका मैं फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। यार जिंदा सोबत बाकी। और इसी के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका साथ हो तो इससे ज्यादा हमारे पास और प्रोग्राम से और आगे कहीं तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता चलो। शुक्रिया।